Jai Shri Swaminarayan. SSGM CBSE School, runs by Shri Sajanand Gurukul, heartily welcomes you to the online education. So, students of class 6th, today we are going to learn lesson number 1 in supplementary reader, that is A Pact with the Sun, and our chapter name is A Tale of Two Birds. This is a story based on two birds, how they, though they are brothers, but their behaviors are totally changed with whom they live. So, students, I am going to read this chapter and explain it to you. Based on that, you have to perform question answers, which is given by me as a homework to you. Okay, so I am reading the chapter. So, supplementary reader, lesson number 1, A Tale of Two Birds. Okay. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. There was one mother bird who lives in a forest with her two newborn babies. Two newborn babies. Yes, means we can say that baby birds. Okay. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. Now see, students, what happens here? Her mother make nest in a tall shady tree. It's a tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. Then baby birds were taken care by their mothers, means उसकी मम्मी थी, वो बहुत ही इसका ख्याल रखती थी, छोटे जो. Okay, then one day there was a big storm. One day there was a big storm, यानी एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज तूफान आया. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. What happens when the storm came? At that point of time there was a high thunder, lightning and very heavy rain. Means बहुत तेज तूफान की वजह से लाइटनिंग एंड थंडरिंग मीन्स बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी बहुत ज़ोरों शोरों से कड़क रही थी. उसके साथ साथ बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी. Very high wind blew, and due to this many trees get down. मतलब कि trees जो पेड़ है वो इसकी वजह से सब uprooted. We can say uprooted. Uprooted means ज़मीन में से निकल कर गिर गए. The tall tree in which the birds lived also came down. और ये एक ट्री, सभी पेड़ नीचे गिर रहे थे, उसके साथ साथ जिसके ऊपर ये मदर बर्ड ने नेस्ट बनाया था फॉर दिस टू बेबीज बर्ड, उसमें ये ट्री भी यानी ये पेड़ भी ये तूफान की वजह से क्या हो गया, गिरकर टूट गया. Due to this, a big heavy branch hit the nest. और जैसे ही वो पेड़ गिरा, उसके ऊपर हेवी ब्रांच मतलब एक बहुत ही हेवी भारी सी ब्रांच यानी डाली ये नेस्ट के ऊपर गिर पड़ी. और ड्यू टू दिस किल्ड द मदर बर्ड, और इसके साथ साथ मदर बर्ड की वहाँ पर डेथ हो गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. लेकिन क्या हुआ कि नेस्ट के ऊपर जैसे ही ब्रांच गिरी, at that point of time the mother bird get died, but
a strong wind blew these two baby birds were to other side of the forest. यानी दूसरे साइड में ये हवाएं जो तेज चल रही थी वो बेबी बर्ड्स को दूसरी ओर उड़ाकर लेकर गई, जो जंगल के दूसरे भाग का हिस्सा था वहां पर. Now see, one of them came down near a cave where a gang of robbers lived. One of them, though there were two baby birds, अभी नंबर 1 जो है बेबी बर्ड वो कहां पर आके गिरा? नियर अ केव वेयर रोबर्स लिव्ड, जहां पर वी कैन से दैट कि गुंडे या डाकू लोग रहते थे, वहां पर बर्ड नंबर 1 आकर गिरा. एंड whereas the other landed outside a rishi's ashram and little distance away. और बेबी बर्ड नंबर 2 वो कहां पर आके गिरा? नियर अ ऋषिश आश्रम विथ अ लिटिल डिस्टेंस, यानी कि एक साइड ऋषि का आश्रम था और दूसरी साइड ये डाकों गुंडों की केव यानी गुफा थी. दोनों पास पास में ही गिरे थे बट डिफरेंट पार्ट. एक गिरा था ऋषि मुनि के आश्रम में और दूसरा गिरा था रोबर्स यानी डाकू या गुंडे. अब स्टूडेंट्स क्या होता है देखिए आप, डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स. अब जैसे जैसे दिन बीतते गए ये जो बेबी बर्ड्स है वो बड़े होते गए और देन वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू दैट फॉरेस्ट टू हंट. और फिर एक दिन जंगल में वो एक देश का राजा है वो शिकार करने के लिए वो जंगल में आता है. He rode after a deer, और उसने एक डियर को देखा जो उसने उसके पीछे अपना घोड़ा जो है वो घोड़े से उसका पीछा किया शिकार करने के लिए. He lost his way, और फिर डियर के पीछे दौड़ते राजा यानी किंग है वो अपना रास्ता भटक गया. He lost his way. Then he was tired, यानी वो एकदम से थक गया था, थका हारा वो आगे बढ़ रहा था कि he stood near a cave, और फिर वह एक गुफा के पास जहां पर ये रोबर्स यानी कि डाकू रहते थे वहां पर आके वो रुक गया यानी वहां पर आके खड़ा रहा. Then he heard the voice of a bird, और फिर उसने एक बर्ड की आवाज़ सुनी यानी एक पक्षी की आवाज़ सुनी. अब जो ये बर्ड था वो था बेबी बर्ड जो एक आके गिरा था ये रोबर्स की केव के पास गुफा के पास और दूसरा जाके गिरा था आश्रम ऋषि मुनि के आश्रम के पास. अभी क्या होता है देखो, he heard the voice of a bird, over here king heard the voice of a bird. It asked the robbers, और उसने robbers यानी डाकुओं को बताया कि to come and loot the traveler, जल्दी यहाँ पे सब इकट्ठे हो जाओ, बाहर एक बहुत बड़े देश का राजा है, चलो बाहर आओ उसको लूट लेते हैं. The king was afraid, और यह सुनकर किंग एकदम से डर गया. And he rode away at once, और वो वहां से तुरंत भाग चला. जैसे ही वो भागते भागते आगे आया, soon he reached the ऋषिश आश्रम, और फिर ये किंग यानी राजा है वो ऋषि जी के आश्रम के पास आ खड़े हुए और वहां पर रुकने का फैसला किया. एंड देन ही sat down in the shade of tree, और एक पेड़ था उसके नीचे. क्योंकि वो बहुत ही थक गए थे इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने का डिसाइड या सोचा. Then once again he heard a bird's voice, और फिर से राजा जी को
एक पक्षी की आवाज़ सुनाई दी जो क्या बोला, इट वॉज स्वीट एंड जेंटल। और ये जो आवाज़ थी वो बहुत ही स्वीट एंड जेंटल, यानी कि वी कैन से दैट बहुत ही रिस्पेक्ट दिया। एंड what that second bird says who lived in this Rishish ashram, that I'd welcome the king। और फिर ये जो सेकंड बर्ड था जो ऋषि मुनि के आश्रम में था, इट वेलकम द किंग। ये ऋषि मुनि के आश्रम में जो बर्ड रहता था, पक्षी रहता था, उसने किंग यानी राजा जी का स्वागत किया। एंड soon the rishi returned to the ashram। soon the rishi returned to the ashram। और फिर जल्दी ही ऋषि आश्रम में वापस आए। तब क्या होता है, द किंग टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। और फिर ये राजा ने ये दोनों बर्ड्स की स्टोरी यानी कहानी में से ऋषि मुनि को सुनाई कि कुछ इस प्रकार सा मेरे साथ आज हुआ। तो क्या हुआ, दैट द बर्ड्स लुक अलाइक, यानी दोनों बर्ड्स हैं, इट्स लुक अलाइक। बर्ड्स जो हैं वो लुक अलाइक, मतलब दोनों एक जैसे दिखने में हैं, दोनों दिखने में एक जैसे हैं। देन ऑल्सो दे स्पोक डिफरेंटली, लेकिन फिर भी वो डिफरेंटली यानी अलग अलग बोलते हैं। वन इमिटेटेड द रॉबर्स, द अदर्स वेलकम द किंग स्वीटली। एक जो है वो डाकू या गुंडों की तरह बोलता है और उसके जैसे ही बर्ताव करता है, बिहेव करता है, जबकि जो आपके पास रहता है ऋषि मुनि जी, वो बर्ड एकदम से जेंटल है, स्वीट है, एंड ही इज ऑल्सो वेलकमिंग, मतलब उसने मुझे वेलकम भी किया कि आप यहाँ पर आके रेस्ट करिए। द ऋषि जी एक्सप्लेन, अब ऋषि मुनि एक्सप्लेन करते हैं राजा जी को, दैट द ऋषि that the reason why it was so, ऐसा क्यों है, क्योंकि the two birds were brothers, वो दोनों हैं भाई, but they behaved differently, यानी वो उसका बिहेवियर जो है, बर्ताव है, वो अलग अलग है। and it was the result of the company they kept। और इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि इन दोनों की कंपनी, यानी कि एक जो है वो अच्छाई के साथ रहता है, जो ऋषि मुनि जी के साथ रहता है, और एक जो है वो बुराई के साथ रहता है, इसलिए उसके अंदर बुरे संस्कार आए। दैट मीन्स वी हैव टू कीप आवर कंपनी इज विथ गुड पीपल इंस्टेड ऑफ बैड पीपल, यानी कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम अच्छा अच्छा सीखेंगे, अच्छे संस्कार आएंगे और उसके साथ साथ हम अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। बट इफ वी लीव विद द बैड पीपल, देन आवर आइडियाज, आवर थॉट्स इज ऑल अबाउट टू लाइक द बैड पीपल, इसलिए वी हैव टू कीप आवर कंपनी विथ गुड पीपल। सो ओवर हियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होता है खत्म। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज एक्सरसाइज विच आई used to give homework through WhatsApp, the question answers that you have to perform by yourself, which is going to be given in WhatsApp group of your class. Now students, I am ending this topic over here. Over here we are completing our lesson number 1 in supplementary reader, that is a tale of two birds. Students, thank you. Please do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you and Jai Shri Swaminarayan.